सिर्फ होता है प्राइम मिनिस्टर को और बिहार में चीफ मिनिस्टर को। बाकी जो मिनिस्टर है वह नीति नहीं बनाता है, वह सलाहकार के रूप में रहता है। हम सलाह नीतीश कुमार को देते रहे हैं। आप नीतीश कुमार से पूछिए कि मैंने कहा कि यहाँ जो मिड डे मील है इसको, हमारे यहाँ स्कॉलरशिप की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे के घर में ऐसा कुछ घटना घट जाती है जिसका कारण उसके पेरेंट्स नहीं है और फीस देने वाला कोई नहीं है। Lepsa from St. Paul's School, Darjeeling. Basically, I'm come here for meeting the parents, prospective parents, to interact with them. Basically, it's a kind of a visit to our own old students who are here in Patna, because a lot of them are here, settled in Patna, and all over Bihar actually, but we couldn't go to all the places. Only we have been able to come to Patna, so that we meet our prospective parents and also interact with some of the old polites who are here in Bihar. सर, मिस्टर पीटर लेप्चा है, सेंट पॉल्स स्कूल से है। यहाँ पर इनका आने का मुख्य उद्देश्य है अपने पुराने छात्रों से मिलना, और जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को सेंट पॉल्स में एडमिशन कराना, उनसे मिलना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एडमिशन टेस्ट का एक ड्राइव चल रहा है। तो सेंट पॉल्स से सर यहाँ पर बिहार इसलिए आए हैं ताकि सेंट पॉल्स आज के डेट में विश्व का तीसरा सबसे पुराना प्रेस्टिजियस स्कूल है, जो अपने अस्तित्व का 200 साल पुराना स्कूल पूरे विश्व का है, और अपना अस्तित्व का 200 साल पुराना यह कंप्लीट कर रहा है 2023 में। तो ये एक ढंग से गिफ्ट है सेंट पॉल्स की तरफ से बिहार के जनता को, कि सेंट पॉल्स खुद चल करके आया है ताकि यहाँ पर लोगों का एडमिशन आसानी से वो अपना एंट्रेंस टेस्ट दे सकें और सेंट पॉल्स जैसे प्रेस्टीज स्कूल में अपने बच्चों को डाल सकें। साथ ही साथ ये बिहार के लोगों से बहुत प्रभावित हैं। यहाँ के बच्चे ज़्यादातर हर कंपटीशन में टॉप करते हैं, इसलिए हर अच्छे इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे वहाँ पर जाएं, पढ़ें और अपना बढ़िया से बढ़िया भविष्य बनाएं। साथ ही साथ सेंट पॉल्स को भी अपने प्रभाव से थोड़ा गौरवान्वित करें, अपने रिजल्ट से अपने अच्छे प्रकार से गौरवान्वित करने की कोशिश करें। उसी के दौरान हम लोग ने यहाँ पर आज सेंट पॉल्स के लिए एडमिशन टेस्ट और जो हमारे पुराने छात्र हैं उनसे मिलने का मौका, और जो नए लोग हैं जो चाहते हैं अपने बच्चों को सेंट पॉल्स में डालने का, उसका इंटरव्यू और एडमिशन टेस्ट हम लोग करा रहे हैं। A student, why did take admission in your school? Because there are a lot of Other schools institutions other institutions in Patna and Bihar. See, first of all, St. Paul's School is one of the very old schools, and we have a lot of students who are already from Bihar and Patna and other places here. But if you are asking me why to take admission in St. Paul's School as compared to other schools, I think the first thing is, first of all, it has a great reputation, and we have great curriculum going on in the school, and it's for the all-round development of the students. I think this is one of the best, that we provide holistic formation for our students, and you can see that the children have blossomed, done very well in life, and we are very proud of these students, and we want more of such quality education to be imparted on more. And we have students, they study, and then suddenly some unfortunate incidents happen in the house. We are still a very good, our chairman is from the is the bishop of Church of North India. So there's a kind of on a compassionate ground, we do give bursary, we call it bursary, certain concessions for the children in case there is a kind of a situation that demands help, because we want a student to complete the educational program in the school. Just because of financial constraints, if a child has to suffer, then discontinue the study, we would not like this, because at the end of the day we are into educational program, we are not running a business. So we want every child to complete the educational program, and that's how sometimes we try to convince the parents to do the little bit
and complete the education program with the help received from the school. So directly this kind of bursary is given, scholarships are given. Otherwise we do not have a kind of other forms of scholarships. आपके सवाल का जवाब है, जो पूरे शिक्षण संस्थान हैं वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से काम करते हैं। सेंट पॉल्स एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से काम नहीं करता। ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलता हुआ इंस्टीट्यूशन है। इसीलिए इसका फीस आज के डेट में सारे अच्छे जो इस स्तर के संस्थान हैं, विश्व स्तरीय जो संस्थान है, उसमें सबसे कम फीस है। सिर्फ 5 लाख रुपया प्रति साल हम लोग बच्चे का फीस लेते हैं, जिसमें उनका सारे खर्चों को उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। कहीं कोई उसमें किसी के लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर और अलग सिस्टम नहीं बनता। करीब करीब बच्चों के लिए उसमें सबसे बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय तरीके का खाना, भोजन, शिक्षा, किताबें सब कुछ दे करके हम लोग उनका ये फीस स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे यहाँ स्कॉलरशिप की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे के घर में ऐसा कुछ घटना घट जाती है जिसका कारण उसके पेरेंट्स नहीं है और फीस देने वाला कोई नहीं है, तो हमारे पास एक बर्सरी करके एक विशेष व्यवस्था होती है वैसे बच्चों के लिए जो अचानक इस परिस्थिति में आ गए हैं जिसमें उनके पेरेंट्स पैसे नहीं दे सकेंगे। उसमें हमारा संस्थान 30% से लेकर के 100% तक उनको कंप्लीट छूट भी देता है और उन बच्चों का शिक्षण आसानी से चलते रहे और कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न करे। इसको हम लोग नैतिक जिम्मेवारी के रूप में अपने संस्थान के साथ स्वीकारते हैं और किसी बच्चे का ऐसा नहीं है कि वो फीस नहीं दे सकेगा तो उसको फिर हम लोग अपने स्कूल से निकाल देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। आज बिहार के लिए काफ़ी खुशी का दिन है कि सेंट पॉल्स स्कूल दार्जिलिंग जो दुनिया के पैमाने पर तीसरा नंबर का सबसे पुराना स्कूल है और स्टैंडर्ड टाइप का है, आज उसके प्रिंसिपल और केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जी आए हैं। बिहार के बच्चों को नामांकन कराने के लिए ऐसा नहीं है, वहाँ तो डोनेशन देने वालों का तांता लगा रहता है, लेकिन वहाँ डोनेशन नहीं लिया जाता है। वहाँ एक सर्टेन जो अमाउंट्स है वो लिया जाता है और इसमें कोई शक नहीं है कि सेंट पॉल्स स्कूल दार्जिलिंग का जो पढ़ा हुआ बच्चा है डेफिनेटली है अपने ज़िंदगी के हर क्षेत्रों में शानदार उसकी उपलब्धि है। हजारों हजार बच्चे बिहार से आते हैं और मुझे फ़ख्र इस कहने में हो रहा है कि बहुत सारे जो बिहार के IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, उसमें सेंट पॉल्स स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अलग बात है कि बिहार में जो वर्तमान सरकार है, बिहार की जो शिक्षा नीति है, बिल्कुल बिहार का चौपट हो गया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा चपरासी और क्लर्क से ज़्यादा नहीं बन सकता है। ये बाबू नीतीश कुमार की शिक्षा नीति है। तो आज के टाइम में एक तरह से सेंट पॉल्स स्कूल ही आया है यहाँ के बच्चों को संभालने और नामांकन कराने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मैं प्रिंसिपल साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कम एक दक्षिणी बिहार में और एक उत्तरी बिहार में ज़रूर प्रिंसिपल साहब इसी तरह का कार्यक्रम दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। सर, आप राजनीति की बात उन्होंने कही थी कि नहीं छेड़नी है, लेकिन आपने खुद इसको जो हम लोगों को मुद्दा दे दिया है। बिहार में सर आप भी मंत्री रहे हैं जी, केंद्र में मंत्री रहे हैं, आज की शिक्षा नीति ही इसके लिए जिम्मेवार है, ऐसा किसी को लगता नहीं है कि आज की वजह से ही पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। भाई देखो, बहुत क्लियर बोलता हूँ, पावर सिर्फ होता है प्राइम मिनिस्टर को और बिहार में चीफ मिनिस्टर को। बाकी जो मिनिस्टर है वह नीति नहीं बनाता है, वह सलाहकार के रूप में रहता है। हम सलाह नीतीश कुमार को देते रहे हैं। आप नीतीश कुमार से पूछिए कि मैंने कहा कि यहाँ जो मिड डे मील है इसको
इसके लिए दूसरे राज्य मद्रास केरला वगैरह में वहाँ कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे दिया जाता है खाना बनाने के लिए, है ना। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए खाना बना मिड डे मील के, तो टीचर भी पढ़ाएगा और बच्चा भी पढ़ेगा। लेकिन यहाँ कोई उस तरह का उपाय नहीं किया है। इसलिए मिनिस्टर कोई अगर है तो उसकी जिम्मेवारी उस तरह की नहीं बनती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बिहार का शिक्षा नीति बिल्कुल चौपट है, और सेंट पॉल्स ऐसा जो स्टैंडर्ड टाइप का स्कूल जो पूरे दुनिया के पैमाने पर उसका एक नाम है, वहाँ से लोग प्रिंसिपल और एक तरह से स्कूल का मैनेजमेंट आया है। इसलिए हम लोग आभारी हैं बिहार के लोगों का सेंट पॉल्स स्कूल के।